Hello everyone, this is Umair Hassan and this lecture is for CSS General Science and Ability. The topic is composition of atmosphere and the objective of this lecture is to describe constituents of atmosphere and their relative concentration. मतलब आपके एटमॉस्फेयर में कौन कौन से पार्टिकल्स या कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स किस चीज़ से बना हुआ है वो and what is the basically concentration of all the relevant matter present in the atmosphere. To survey the four layers of atmosphere, atmospheres की कौन सी four layers हैं with their properties, and to discuss the problem of ozone depletion. I think the last one will be the part of the next lecture. So first of all, let us see what is the concept of atmosphere. Atmosphere is basically a blanket, but this blanket is basically of air or of gaseous sphere like mentioned यहाँ पे है. A blanket of air like air ने आपको एक blanket की तरह cover किया हुआ है और the air has basically different types of gases in it. So this is the concept of atmosphere according to Das Gupta. Earth's atmosphere is a thin blanket of gases or tiny particles, and together these mean gases or tiny particles को अगर आप एक साथ consider करें तो that basically forms atmosphere. The important thing to note here is that all the stars and the planets except Mercury is believed to have this atmosphere. आपके जितने भी planets हैं, जितने भी stars हैं except Mercury, they have supposed to have some atmosphere. Mercury में atmosphere ना होने की वजह is because this is quite near to sun और सूरज का ज़्यादा टेम्परेचर उसकी radiations is basically the cause कि मरकरी का एटमॉस्फेयर evaporate हो जाता है. That's why it doesn't exist. Moon and satellites of other planets supposedly doesn't possess atmosphere. Moon और जो satellites हैं, moon is the satellite of earth. Well, moon is a natural satellite. इसी तरह दूसरे planets की satellites हैं. Jupiter has satellites, so they don't have atmosphere. और atmosphere extend करता है up to 1000 miles above earth surface. अर्थ की सरफेस से 1000 miles above you can have atmosphere. Significance of atmosphere. Why atmosphere is important? Atmosphere क्यों important होता है? Basically atmosphere prevents high temperature during daytime by shielding earth from incoming ultraviolet radiations. Daytime में atmosphere is there to prevent us from ultraviolet radiations. Radiations are coming. Earth तक radiation आ रही होती हैं. Obviously that's why the sunlight is a type of radiation, but not all of them reflect हो रही होती हैं. एटमॉस्फेयर की गैसेस पार्टिकल से रिफ्लेक्शन हो रही होती है, कुछ एब्जॉर्प्शन हो रही होती है एटमॉस्फेयर के अंदर. सो वी आर बेसिकली प्रिवेंटेड बाय दिस एटमॉस्फेयर. दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता फिर इस तरह से. It is also important to prevent freezing temperatures or low temperatures during night time by preventing escape of long wave radiation. Escape के spelling यहाँ गलत है, इसको ठीक कर लें. It prevents low temperature during night. इसका मतलब ये है कि at night when there is no sun, तो we have radiations that are emitted from earth. Earth में जो energy absorb हुई होती है डे टाइम में, earth releases that energy during the night time and that energy is long wave radiations. So when earth release that energy, वो energy इस atmospheric blanket की वजह से escape नहीं हो पाती. That's why
एक मॉडरेट टेम्परेचर मेंटेन रहता है अर्थ के ऊपर, अदरवाइज वी विल बी हैविंग अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर दैट विल नॉट बी फिजिबल फॉर सर्वाइवल. The next one is structure of atmosphere. Atmosphere extends from few meters below the ground on land to almost 60,000 kilometers. Now this is a generalization. It is thought that atmosphere extend up to this extent. Obviously when you move upward, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते हैं, density is reduced, density कम होती जाती है. Major flow of energy and matter takes place in lower layers of atmosphere. जो मेजर एनर्जी का फ्लो होता है ना, द एनर्जी फ्लो मीन आपकी सर्कुलेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें वाटर वेपर्स का बनना, वाटर वेपर्स की मूवमेंट. एक्चुअली वाटर वेपर्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी. तो जितनी प्रेसिपिटेशन है, ये सब बारिशों का अमल है, दैट हैपन्स बिलो 10 किलोमीटर. एयर करंट्स रीडिस्ट्रीब्यूट हीट अक्रॉस द अर्थ. आपके जो एयर करंट्स होते हैं, जो हवा का सिलसिला होता है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस to another place, that redistributes heat across the earth. So basically there are two main vertical regions of atmosphere. दो main vertical region होते हैं. Number one is homosphere. Well, the name is homo, means same. यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन रखता है. दिस इज़ अप टू 80 to 100 किलोमीटर. सरफेस ऑफ अर्थ से लेके 80 to 100 किलोमीटर होमोस्फियर होता है. वी लिव इन होमोस्फियर, ऑब्वियसली वी आर ऑन अर्थ, एंड वी हैव कांस्टेंट गैसेस, वेरिएबल गैसेस एंड impurities here in the homosphere. Now this is diagram which shows which gas is up to which percent. अगर आप इसमें देखेंगे तो we have 99% नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसमें नाइट्रोजन ऑलमोस्ट 78% है. ये कांस्टेंट गैसेस हैं, और ऑक्सीजन इज़ ऑलमोस्ट 21%. देन आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वेरिएबल गैस है. वी नो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर. वाटर वेपर्स वेरिएबल हैं, कहीं पे ज़्यादा मिलेंगे आपको, कहीं पे कम मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड डस्ट पार्टिकल्स. ये आपके पास बेसिकली एटमॉस्फेयर में ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके एटमॉस्फेयर में. तो कांस्टेंट गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये कांस्टेंट है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज़ कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया इनटू अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ. अब नाइट्रोजन, एज़ फार एज ह्यूमन आर कंसर्न, हम नाइट्रोजन को इनहेल ऑब्वियसली नहीं करते, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं. एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है, दैट इज़ यूज्ड बाय बैक्टीरिया टू कन्वर्ट nitrogenous compound to make nitrogenous compound which are essential for growth of plant, and plant are essential for us, for animals, for humans. Oxygen is necessary for humans in the process of respiration. हम जो एनर्जी अटेन करते हैं, हम जो एनर्जी बेसिकली हमें एनर्जी मिलती है फूड से, दैट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. द प्रोसेस रेस्पिरेशन, जिसमें फूड इज़ बर्नड, हमें एनर्जी मिलती है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है रस्टिंग ऑफ आयरन. ऑक्सीजन के बगैर ये नहीं होगा. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑयल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, दे ऑल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. आर्गन, ये कांस्टेंट गैसेज हैं अभी तक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये इनका पर्पस भी नीचे लिखा हुआ है. आर्गन 1% ऑफ ड्राई एयर, it is almost 1% of dry mass of air. It has some commercial use, like we use them in neon lights. It has no role in the working of environment. As far as working of environment is concerned, इसका कोई रोल नहीं है. No, this is what we have in atmosphere. Nitrogen 78%, oxygen 21%, carbon dioxide gas 0.03%, and the rest of the gases argon and all other. Now variable gases में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. Why it is variable? Because we are responsible for transferring of carbon dioxide gas from our
automobiles, our industries. So let us see क्या कहते हैं. It plays a role in photosynthesis. Exactly. photosynthesis में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व होती है. It in photosynthesis we basically get carbohydrates. हमें food glucose मिलता है. It absorbs some energy transferred to atmosphere from earth surface. अर्थ की सरफेस से जो लॉन्ग वेव रेडिएशन अमिट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैज़ द एबिलिटी टू absorb that radiations. That results in increase of atmospheric temperature, and that is what is global warming. It helps to keep the atmosphere at a temperature suitable for life. Exactly. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यूज़फुलनेस ये है कि वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को इस हद तक रखती है कि हम उसमें सर्वाइव कर सकें, ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड. बट मोर कंसनट्रेशंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर डेंजरस. It helps to dissolve limestone, thus forming various landscapes. लाइमस्टोन को डिसॉल्व करने में ये हेल्प करती है. डिफरेंट लैंडस्केप्स आपके फॉर्म होते हैं. इट प्लेस रोल इन क्लाइमेटिक चेंज ओवर द पास्ट 2 centuries. The result of global warming, changing weather patterns, extreme weathers. So water vapors, why they are important? They absorb energy from Earth's surface. They are responsible for transfer of energy from one point to another point. More efficient than carbon dioxide gas in capturing energy. They have the ability to store energy for a long time. स्टोर भी हो सकती है एनर्जी वाटर वेपर्स में. एक जगह से दूसरी जगह बारिश का बायस भी बनते हैं. टेम्परेचर्स को मेंटेन रखते हैं, चेंज करते हैं. एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वेपर्स के थ्रू, विंड्स के थ्रू. डेजर्ट्स में या कोल्ड रीजन्स में दे मेक अप 1% ऑफ एयर, बिकॉज वहाँ पे मॉइस्चर प्रोवाइड करने वाले ओशन या सीज या रिवर्स कम होते हैं डेजर्ट्स में. ओवर वार्म ओशंस और ट्रॉपिकल एरियाज़ में जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं 3 से 4% आपके वेपर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर्स अकर नियर सरफेस ऑफ अर्थ. ज़्यादातर सरफेस ऑफ अर्थ के पास होते हैं और टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होता है, तो इसलिए वेपोरेशन का चांस ज़्यादा होता है. नो वेपर मीन नो क्लाउड्स. ऑब्वियसली अगर आपके वेपर्स नहीं होंगे तो आपकी बारिशें भी नहीं हो सकती, क्योंकि क्लाउड्स ही नहीं होंगे. व्हाट इज़ ओजोन? नो, दिस इज़ रेयर टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O3. O3 इज़ ओजोन, composed of 3 oxygen atoms. एंड ये आपको मिलेगा ओजोनोस्फीयर में, जो 15 से 50 किलोमीटर के बीच में आपको ओजोन की एग्जिस्टेंस नज़र आएगी. इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है. ग्रेटेस्ट कंसनट्रेशन आर फाउंड बिटवीन 20 एंड 25 किलोमीटर. इस रेंज में कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है ओजोन की. कॉन्स्टिट्यूट लेस दैन 6 पार्ट्स पर 1 lakh. ओके, 6 पार्ट्स, ये उसकी कंसनट्रेशन बताई हुई है. अगर आपके 1 lakh पार्ट्स हों तो 6 पार्ट्स आर देयर ऑफ ओजोन. इसका रोल क्या है? वाई ओजोन इज़ इम्पॉर्टेंट? इट बेसिकली एब्जॉर्ब्स ultraviolet radiations which are not good for our health. They cause skin cancer. They are responsible for various types of diseases in humans. So ultraviolet radiations are being absorbed by ozone, and that's why this is important. Ozone shields us from excessive quantity of ultraviolet radiation that may cause sunburn. सनबर्न हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है. अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दे आर वेरी डेंजरस. What are other type of variable gases in the atmosphere? We have hydrogen, helium, sulfur dioxide gas, oxides of nitrogen, ammonia, methane, carbon monoxide gas. ये तमाम वेरिएबल हैं, वेरी करती रहती हैं. इनमें से कुछ पोल्यूटेंट्स भी हैं. Some of them are pollutants as well. नेक्स्ट वन इज़ इम्प्योरिटीज़. अगर आप इम्प्योरिटीज़ की बात करें तो एरोसल्स विच आर टाइनी फ्लोटिंग पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर, वो भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा होते हैं. तो दे आर इम्प्योरिटीज़. डस्ट है, स्मोक है, बैक्टीरिया, प्लांट स्पॉट, साल्ट, क्रिस्टल्स, दे आर ऑल इम्प्योरिटीज़. एंड बेसिकली दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रेन ड्रॉपलेट.
Okay, they have some useful purpose as well. They are also useful. They are also responsible for the effect of color of sky, air. Why this is possible? Air and small impurities scatter more blue light. एयर हो गई या स्मॉल इम्प्योरिटीज़ होगी, वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं. ऑब्वियसली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द स्काई. अदरवाइज स्काई इज़ कलरलेस. स्काई तो कलरलेस होता है, हमें ब्लू क्यों नज़र आता है? बिकॉज ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है. डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो दे प्ले रोल इन सनसेट्स, ट्वाइलाइट एंड हेज. ट्वाइलाइट का फिनोमेना डस्ट पार्टिकल की वजह से होता है. कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अबाउट देम. इन डस्ट पार्टिकल्स पे ड्रॉपलेट फॉर्मेशन, कंडेंसेशन का प्रोसेस हो सकता है और वहाँ पे आपको ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हेल्प आउट करेगा ये डस्ट पार्टिकल. इफेक्टिव इन अब्जॉर्बिंग एंड डिफ्यूजिंग सोलर एनर्जी. ये सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब भी करता है, डिफ्यूज़ भी करता है. नेक्स्ट वन इज़ हेट्रोस्फीयर. हमने अभी तक होमोस्फीयर पढ़ा. होमोस्फीयर मीन वेयर यू हैव केमिकल कंपोजिशन जहाँ तक सेम रहती है आपके एटमॉस्फेयर की. हेट्रो मीन चेंजिंग, वेरिंग. केमिकल कंपोजिशन इज़ हेट्रोस्फीयर एंड दिस इज़ अबाउ 100. ओके, दिस इज़ अबाउ 120 किलोमीटर. होमोस्फीयर इज़ अप टू 100 किलोमीटर. उसके ऊपर आपको हेट्रोस्फीयर मिलेगा. डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? डेंसर गैसेस आपकी लो एटमॉस्फेयर में मिलेंगी, लाइटर गैसेस आपको अपर एटमॉस्फेयर में मिलेंगी. ऑब्वियसली डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो लो होंगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो अबव होंगी. ये अब अगर आप देखें तो आप टू 12 माइल्स वर्टिकली 12 माइल्स अगर आप देखें ऊपर की तरफ जाएं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलेगा. 12 to 80 माइल्स ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलेगा एंड 80 माइल्स के ऊपर आपको हाइड्रोजन मिलेगा ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटीज़. अप टू अ हाइट ऑफ 20,000 feet composition of atmosphere is fairly uniform. Why? Because of winds. ये क्वेश्चन है. आपके ऑलमोस्ट 20,000 फीट तक आपके एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन सेम होती है. उसकी रीज़न है विंड्स. विंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स. अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट वेरीज विद टेम्परेचर. आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके वाटर वेपर्स कंटेंट ज़्यादा होगा. टेम्परेचर कम होगा, वाटर वेपर्स कंटेंट कम होगा. नो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी कि इक्वेटर से अगर आप पोल्स की तरफ जाएं तो वाटर वेपर कम होंगे. द रीज़न इज़ दैट अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो होगा. इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाटर वेपर ज़्यादा होंगे. पोल्स पे टेम्परेचर कम होता है, वाटर वेपर कम होंगे. जैसे जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाई टेम्परेचर, हाई अल्टीट्यूड यानी इक्वेटर से पोल का ट्रेंड में डिस्कस कर रहा था. ज़्यादा टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा एवेपोरेशन, ज़्यादा एवेपोरेशन का मतलब ज़्यादा वेपर. नाउ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आल्सो वेरीज विद डे एंड नाइट. Obviously, lighter gases predominates during the day as temperature is high during day. टेम्परेचर ज़्यादा होता है. जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है गैसेज एक्सपैंड होती हैं और डेंसिटी कम होती है. सो दिस इज़ हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स ऑल दिस. एटमॉस्फेरिक साइकिल्स की बात करें सो बेसिकली 4 वाइटल साइकिल्स हैव डेवलप्ड एट द इंटरफेस वेयर एटमॉस्फेयर adjoin lithosphere, hydrosphere, biosphere, involving transfer of water, oxygen, nitrogen and carbon dioxide gas. 4 टाइप्स ऑफ साइकिल्स आते हैं. 4 तरह के साइकिल्स आपको मिलेंगे इस पे. इसमें होगा क्या? एटमॉस्फेयर इज़ बीइंग कनेक्टेड या ये इन टच होगा लिथोस्फीयर के साथ, हाइड्रोस्फीयर के साथ, बायोस्फीयर के साथ. और इसमें आपका ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज हो रहा होगा. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की डिस्कशन करते हैं. दैट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ वाटर वेपर्स बेसिकली या वाटर्स.
So circulation of water among atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere is basically your is hydrological cycle. एटमॉस्फेयर से वेपर्स जब कंडेंस होते हैं, जब उनका टेम्परेचर कम होता है, दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स, प्रेसिपिटेशन यानी बारिश होती है, बारिश से पानी लिथोस्फीयर यानी आपके सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ पे भी आ सकता है, हाइड्रोस्फीयर यानी जहाँ पे ओशंस हैं वहाँ, बायोस्फीयर बेसिकली द एरिया वेयर द लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट, इसको बायोस्फीयर कहते हैं. सो दिस इज़ हाउ. और यहाँ से फिर लिथोस्फीयर से वेपोरेशन होती है, हाइड्रोस्फीयर से वेपोरेशन होती है, वाटर वेपर्स दोबारा ऊपर जाते हैं, दोबारा कंडेंसेशन होती है, दोबारा बारिश होती है, एंड द साइकिल गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन. दिस इज़ hydrological cycle. This was a very simple diagram for that. Oxygen cycle. Oxygen is taken up by animals. Animals give out carbon dioxide gas. Plants take up carbon dioxide gas during photosynthesis and give out oxygen. Again oxygen is taken up by animals. Animals oxygen inhale करते हैं, respiration होती है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन इज़ यूज्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, एंड दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं. एनिमल्स या ह्यूमंस ईट करते हैं प्लांट्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, और बैक्टीरिया डेड एनिमल्स और प्लांट्स को कन्वर्ट करता है अमोनिया, यूरिया और नाइट्रेट में, और वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है और एक साइकिल आपका कंटिन्यू रहता है. दिस इज़ हाउ नाइट्रोजन साइकिल वर्क्स. कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल. कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एटमॉस्फेयर. अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से देखें तो वो ओशन में एब्जॉर्ब होती है. डीकम्पोजिशन ऑफ प्लैंकटन जो सी में आपको मिलते हैं, विच आर द फूड फॉर फिश, उसकी डीकम्पोजिशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होके वापस एटमॉस्फेयर में जाती है, वापस वो यूज़ होती है ओशन में. कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनिमल्स एक्सहेल करते हैं. आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से, आपकी ऑटोमोबाइल से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है. दिस इज़ द बेसिक साइकिल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. Now the layer structure of atmosphere. Okay, this is up to part number 1 of this lecture. Next part में we will discuss layer structure of atmosphere और उसकी 4 layers के बारे में डिस्कशन करेंगे. So keep watching. Thank you so much.